Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed and today we are going to study types of function. In this lecture we will study one function, that is injective, many one, onto, surjective, bijective function, that is combination of one and onto function. Actually this lecture is for class 12. This is the first part, you can say, of class 12. So let's start. वन और इंजेक्टिव फंक्शन. पहले आप मेनी वन फंक्शन समझिए कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है. तो मेनी वन फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, मेनी वन. Let's say I have two sets A and B. In the first set there are 4 elements, 1 2 3 4. In the second set there are 5 elements, 5 6 7 8 9. इसको मैप कर देते हैं. So from here you can see f of 1 as 5, f of 2 equals to f of 3 equals to 6, f of 4 equals to 7. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं f of 2 and f of 3 is 6. That is, for two values of x we are getting same value of y, so it is many one. You can understand in this way, many one. For these many value of x we are getting the same value of y. So for many one function, if f of x1 equals to x1, f of x1 equals to f of x2, this means that x1 is not equals to x2 for many one. You can see here, यहाँ पर आप देख सकते हैं, f of 2 is 6, f of 3 is 6. So but 2 is not equals to 3. This is for many one. तो 1 क्या है? 1 इसका थोड़ा सा अपोजिट है. यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स ये सेट A है, ये सेट B है. तो आई एम अज्यूमिंग this is x1, this is x2, so this will be f of x1, this element, f of x1, this element, and this element will be f of x2. and suppose दोनों जो है f of x1 and f of x2 is 6 and 6. So f of x1 equals to f of x2, that is both are 6. So from here, for one function, x1 should be equals to, x1 must be equals to x2. अगर one फंक्शन है तो x1 x2 के बराबर ही होना चाहिए. मीन्स अगर x1 2 है तो x2 भी 2 ही होना चाहिए. कहने का मतलब दोनों एक ही चीज हो गई. 2 is mapped with 6. For this is the condition of one function.
अगर f of x1 equals to f of x2, so x1 must be equals to x2. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाली केस नजर आ रही होगी. दिस इज फॉर मेनी वन, बट हियर फॉर वन वन दिस कंडीशन इज ट्रू. So let's do a one question. F of x equals to 3x plus 4. You need to find out that this function is 1 1 or not. So what you will do? We will do, if f of x1 equals to f of x2, then x1 should be equals to x2 to be 1 1. Then what is f of x1? 3x1 plus 4 equals to 3x2 plus 4. From here we will get x1 equals to x2. So this function is 1 1 function. This function is 1 1 function. One more thing that I like to tell you, f of x equals to 3x plus 4. इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस. इसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पासिंग फ्रॉम 0, 4. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है that I like to write. A horizontal line cutting the graph at a single point is always 1 1 function. कहने का क्या मतलब है? A horizontal line cutting the graph at a single point is always 1 1 function. Horizontal line means a line parallel to x axis. If suppose if I'll draw a line parallel to x axis, x axis की एक line parallel बनाते हैं हम लोग. So this line is cutting the graph at a single point here only. A line, a horizontal lines means a line parallel to x axis cutting the graph at a single point is always 1 1 function. So this function is 1 1. From here we can also see from this is the graphical method of looking 1 1 function. So let's see some question. Which of these are 1 1 फंक्शन? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन जो है 1 1 होंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दैट इज f of x is 1 by x. f of x is 1 by x. Similarly, second question is f defined from real number to real number, f of x is x square. Now the third question is f defined from r plus to r plus, f of x is x square. And fourth question is f of x, f is defined from real number to real number, real number to real number, f of x is box x, greatest integer function. And last question is f is defined from real number to real number, f of x is x cube. तो इन आपको बताना है विच ऑफ दीज आर 1 1 फंक्शन. इनमें से कौन कौन सा फंक्शन 1 1 होगा. तो दो मेथड है, एक तो ग्राफिकली देख सकते हैं हम लोग बाई watching the graph and making a line which is parallel to x axis. If the line cuts the graph at a single point,
देन इट इज अ वन वन फंक्शन। अगर लाइन कट करेगा ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे तो वन वन फंक्शन होगा। अदरवाइज एक और तरीका है, दैट इज वो f of x1 इक्वल्स टू f of x2, देन x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। तो अगर वो वाला मेथड देखते हैं f of x1 वाला, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं। बोल रखा है f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f of x इक्वल्स टू 1/x, देन what will write f of x1 equals to f of x2, then 1/x1, f of x1 is 1/x1 equals to 1/x2। यहाँ से हम लोग को नजर आ गया कि x1 equals to x2। ये तो सीधा सीधी प्रूव हो गया कि ये वन वन फंक्शन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, f ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 अगर देख करें तो क्या होगा, क्या आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिखने का एक ही तरीका है, दैट इज मॉड ऑफ x1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2। दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज मॉड, सो मॉड ऑफ x1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2। फ्रॉम हियर यू विल गेट x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। दो वैल्यू आई, x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो ये जो है वन वन फंक्शन नहीं हो गया है। x1 इक्वल्स टू सिर्फ x2 आता अपन का, तब वन वन फंक्शन होता है। x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी आ गया तो वन वन फंक्शन नहीं है। सिमिलरली फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ये दिस इज वन वन फंक्शन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए नो, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब देखिए x1 इक्वल्स टू x2, अगर हम लोग x को पॉजिटिव रखें तो एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव, काहे कि इसको भी पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, दोनों को पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज इट इज हियर डिफाइंड एज पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, तब सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 बच जाएगा। तो थर्ड केस में क्या होगा, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ पहले वाले केस, x1 इक्वल्स टू। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव अलाउड नहीं है, r प्लस बोल रखा है। सो दिस विल बी, यस इट विल बी वन वन फंक्शन। इसका बेटर है कि हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएं, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पैराबोला। सो इफ अ लाइन, ये किसके लिए डिफाइन है, r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। एक लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल line, you can see the line is cutting the graph at 2 points, this point and this point, so it will not be a one one function। लेकिन थर्ड केस में क्या है, r प्लस टू r प्लस डिफाइंड है, मतलब कुछ ऐसा है, ये वाला पार्ट है ही नहीं ग्राफ का पार्ट ही नहीं है। अब क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट। The line is cutting the graph at a single point, so it is one one function। Now ये तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे अगर थोड़ा समझ में नहीं आया एनालिटिकली क्या हो रहा है, तो ग्राफ से भी देख लिया कीजिए। ग्राफ से देखने से बहुत फायदे होते हैं, बहुत आसानी से सब चीज नजर आने लगता है। Now the fourth question, function defined from real number to real number, f of x is box x, means greatest integer function।
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो अगर हम लोग वही करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू x2। अगर यहाँ से हमको मिल गया x1 इक्वल्स टू x2 देन इट इज अ वन वन फंक्शन। सो क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x2। इसका क्या मतलब हो सकता है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। देखिए बॉक्स ऑफ 1.9 एंड बॉक्स ऑफ 1.6 इक्वल हो सकता है दोनों। इसका भी बॉक्स 1 आएगा, इसका भी बॉक्स 1 आएगा। बॉक्स ऑफ 1.9 इज 1, बॉक्स ऑफ 1.6 इज 1, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। फ्रॉम हियर we can say that fx equals to box x is not a one-one function. And the last question f of x equals to x cube defined from real number to real number. So अगर हम लोग देखें f of x equals to f of x1 equals to f of x2, तो यहाँ से x1 cube equals to x2 cube, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से फ्रॉम हियर दैट यस इट इज अ वन वन फंक्शन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट फॉर दिस फिफ्थ वन यू कैन गो बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब कैसा होता है, हम लोगों ने ग्राफ देखा एक्स क्यूब का ऐसा होता है। सो इफ यू विल टेक अ लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए कहीं भी किसी भी इस पे, तो ये देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। सो यू कैन सी हियर दैट इट इज कटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, सो इट इज अ वन वन फंक्शन। यहां से भी अपन को नजर आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और सरजेक्टिव। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और वन वन और ऑन टू जो दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। सो ऑन टू क्या है बता देते हैं। हम लोगों ने देखा था फंक्शन में शुरुआत के लेक्चर्स में कि दो सेट्स होते हैं, पहले को डोमेन बोलते हैं, दूसरे वाले को कोडोमेन बोलते हैं। और ये भी देखा था कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। लाइक अगर हम लोग एलिमेंट दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैप करें 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 8 से, 4 को 7 से, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 5 6 7 8। लेकिन कोडोमेन क्या है, 5 6 7 8 9 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहां पे एक और एलिमेंट डाल दूं 5 और इसको 9 के साथ मैप कर दूं। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट सेट ए में डाल दिया अपने मर्जी से 5 और उसको 9 के साथ मैप कर दिया है। तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में, ये समझ लिए सेकंड केस है, तो रेंज हो जाएगा 5 6 7 8 9। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज जब कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू।
रेंज जब कोडोमेन के बराबर हो गया उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का। अगर फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है, जो दिया रहता है कोडोमेन के बराबर है अगर, देन दैट विल बी ऑन टू फंक्शन। सो लाइक f of x equals to 5x, f of x equals to 3x plus 7। फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो कोडोमेन हो गया रियल नंबर, डोमेन हो गया रियल नंबर। अभी रेंज हम लोग को फाइंड करना है, तो इस नंबर का, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो हम लोग कोई भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? This is x axis, this is y axis, then this will be the graph of the function, that is 3x plus 7। ये ग्राफ होगा। अगर रेंज देखने जाएं तो स्ट्रेट लाइन तो -∞ टू +∞ तक होता है, दैट इज रेंज विल बी रियल नंबर। इस केस में देख सकते हैं कि रेंज जो है -∞ से +∞ तक जा रहा है, तो रेंज रियल नंबर हो जाएगा। तो इस केस में रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, तो यस इट इज ऑन टू। ये जो है ऑन टू फंक्शन है, ये वाला। सो अगर सिमिलरली फॉर f(x) इक्वल्स टू x³ मैं बोलूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, दैट इज, तो यहाँ पर भी रेंज जो है दैट इज -∞ टू +∞, एंड फंक्शन भी कुछ ऐसा ही डिफाइंड है, दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है फंक्शन। तो यहाँ पर भी रेंज जो है रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, सो यस इट इज अ ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर भी ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं f of x इक्वल्स, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f of x इक्वल्स टू sin x। इस केस में क्या होगा? sin x का रेंज क्या होता है? sin x का रेंज, sin x का अगर ग्राफ हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, दिस इज 1, दिस इज -1, तो इसका रेंज होता है -1 to 1। लेकिन यहां पर दे क्या रखा है? यहां पर दे रखा है रियल नंबर, रियल नंबर दे रखा है, रेंज अपन का है -1 to 1, सो दिस विल नॉट बी अ ऑन टू फंक्शन। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंजेस लाऊं दैट इज, इसको चेंज कर दूं, -1 to 1 कर दूं और तब पूछूं कि क्या दिस will it be a onto function, then the answer will be yes, it will be a onto function। तो ये सब है onto function के एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं f of x equals to x raised to 4, f is defined from real number to real number, तो इज इट ए ऑन टू फंक्शन? तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि x raised to 4 का ग्राफ क्या होता है। तो ये भी x² जैसा ही ग्राफ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। x raised to 4, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज क्या आ रहा है। सबसे पहले रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट हो रही है, रेंज उसी को हम लोग बोलते हैं। डोमेन वैल्यू ऑफ x, तो रेंज में कहाँ से कहाँ वैल्यू, रेंज में y की वैल्यू है जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि ग्राफ जो है आप इस साइड में जाइए या इस साइड में जाइए,
दोनों साइड में 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, 0 भी इंक्लूड होगा, बट यहाँ पर कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है, सो फॉर हियर इन दिस केस द फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू, नो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर मैं फिर से यहाँ पर वही काम करूँ पिछले वाला, 0 टू इन्फिनिटी कर दूं, देन द आंसर विल बी यस, तब आंसर क्या हो जाएगा, यस। सो एक और चीज बाकी रह गया, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन दैट इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू। जैसे f ऑफ x जो है एक्स क्यूब, तो ये हम लोगों ने देखा इसी लेक्चर में कि ये 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों चीज हैं। सो दिस विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो पहले हम लोग चेक करेंगे कि द फंक्शन इज द फंक्शन 1 1 और नॉट, फिर उसके बाद चेक करेंगे इज द फंक्शन ऑन टू और नॉट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन वी विल बी एबल टू से दैट yes the function is bijective, otherwise it will not be a bijective function. So let's do some question. Function defined from r minus 3 to r minus 1, मतलब रियल नंबर 3 को छोड़कर, रियल नंबर 1 को छोड़कर, यहां से यहां डिफाइन है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। आपको पता लगाना है इज दिस फंक्शन बाइजेक्टिव और नॉट। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने का क्या तरीका है, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर हमें मिलता है, तब ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। व्हाट आई विल डू, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, x1 x2 प्लस 6, x1 x2 प्लस 6 माइनस 3x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 6 माइनस 3x2 माइनस 2x1। तो ये आप देख सकते हैं x1 x2 और 6 कैंसिल हो जा रहा है दोनों तरफ। अभी 3 माइनस 3x2 को लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x2 माइनस 2x2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा x2 और ये उधर जाएगा तो x1 बचेगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया x1 इक्वल्स टू x2, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 है ना, इसको माइनस 2 को माइनस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, f ऑफ x x माइनस 2 बाई x माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई विल गेट, 1 बाई 1 माइनस x माइनस 3। ये आप देख सकते हैं कि x जो है, x इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट 3, r माइनस 3 मतलब रियल नंबर 3 को छोड़कर, 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 3 के आसपास वाला नंबर डालें, 3.1, 3.01 या 3.001, एकदम 3 के आसपास वाला, तो ये वाली क्वांटिटी जो है इन्फिनिटी को जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर 3 से बड़ा होगा नंबर, जैसे 3.001 डालेंगे यहाँ पर, तो वी विल गेट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी। अगर 3 से जस्ट छोटा होगा, लाइक 2.999, वो डालेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो फंक्शन इन्फिनिटी को भी जा रहा है, ठीक है। अगर 3 से बढ़ाते जाएंगे तो
वैल्यू जो है घटती जाएगी, इन्फिनिटी से कम होते 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 कम होती जाएगी। फाइनली अगर x को इन्फिनिटी डालेंगे हम लोग तो 0 के पास आएगा, माइनस इन्फिनिटी भी डालेंगे तो भी 0 के पास आएगा। तो फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो जाएगा? फंक्शन का रेंज जो होगा सब चीज़ आएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा। या तो 1 से बड़ा आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। सो यू कैन सी r-1, मतलब सारे रियल नंबर आए 1 या 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 प्लस समथिंग, इन्फिनिटी भी डालिएगा ना तो एकदम 0 छोटा सा क्वांटिटी आएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, या छोटा एकदम छोटा 0 माइनस में आएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये r-1 आपका रेंज आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो यू कैन से दैट the function is onto। From here यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने onto भी प्रूव कर दिया, 1 भी प्रूव कर दिया। So this function is bijective, 1 and onto। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, f of x equals to x minus 1 and f of x equals to x plus 1। तो आप ये क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। when x यहाँ पर इवन है, यहाँ पर x ऑड है, f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर